Hello, viewers. Let us travel in the time machine to relive our hostel moments in the 1990s in Halwasia, Chatra, Niwas. I will take you back in 1991. I'm sure will not only make you smile but laugh aloud. It will enable us to make our families and children to see for themselves how we lived in the hostel as an extended family of 32 boarders. I'm sure this slice of history will make you relive those moments of hostel life and make you nostalgic. The idea behind uploading this in the YouTube is to enable Halwasians throughout the world to view just by clicking on the link. Thank you so much. The power of music.
कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट प्रेम अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि श्री मोहन लाल जी तुलसियान, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दीपचंद जी नाहटा, मुख्य वक्ता श्री आर के अग्रवाल जी एवं हमारे मैनेजिंग कमेटी के सदस्य श्री झिंझिनवाला जी को लेकर स्टेज पर आए। खेल रहा है मंच उत्सव से, फिजा खामोश खुशबू बिखर रही है। स्वागतम सुस्वागतम, आए हैं आप स्वागतम, आपसे तो यह महफिल मचल रही है। भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दीपचंद जी नाहटा। चीफ स्पीकर श्री आर के अग्रवाल जी। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी श्री गोवर्धन लाल जी झुंझुनवाला। अब मैं हमारे बोर्डर्स यूनियन के प्रेसिडेंट प्रेम अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वे वेलकम स्पीच दें। Thank you, Ajay. Good morning, everybody. Honorable dignitaries on the dais, the chief guest, Mr. Mohan Lalji Tulsian, the guest of honor, Sri Deepchandji Nahata, the chief speaker, Mr. R. K. Agarwal, the secretary, joint secretary managing committee, Mr. Govardhan Lalji Rivinwala, and ladies and gentlemen. This historic Sunday morning gives me an opportunity to welcome you all on this third annual social of the Halwasia Chatra Niwas Voters Union. Historic because of the fact annual social in an institution's life is a very important day. It is on this day that we take stock of our past achievements and gear up for the future. And for an institution like Halwasia Chatra Niwas, for which this annual social is taking place after a mammoth gap of 19 years,
we have an Herculean task to hold to Mr. R.K. Halwasia, the Chief Speaker, who is also a very active lion, the past DG. And I'm thankful to the other managing committee members who are here. Ladies and gentlemen, our hostel is a close-knit family housing 32 inmates from different parts of the country. Students from far-off places come. In spite of being a small number, the ambition and vision of our inmates is not limited. The organization of this annual social proves beyond any doubt that even a handful of determined youth can achieve anything if they have that willpower. But if we have succeeded in any front, my dear friends, it is only the reflections of the aspirations of our beloved Dadaji, Sri Prabhu Dayaji Himmat Singh. Our friend, philosopher and guide, I am also missing him very much. He is also out to Rajasthan in a very important mission, Sri Nand Kishore Jalan, and other members of the managing committee and our trustees, P.D. Halwasia. If we are the moons, they are the stars whose light we just reflect. We don't have our own lights as yet. With their inspirations and blessings, our inmates have been securing wonderful results. We have been achieving All India rank in CA, CS and ICWA in the past years. I am thankful to each exporter, advertiser, patron, well-wisher and many others without whose help this program would never have been possible. I would like to remind my young friends that the world is passing through a very critical phase now, and we have a very significant role to play to save our country from the fangs of terrorism and clutches of the fundamentalist forces. At times, friends, I feel the condition of our country is now comparable to the post-industrial revolution period of Europe. There is an element of doubt in every human mind, and what can save our country from disintegrating now is retreat to our glorious past. In the words of Deleuze, let me dive into the depths of time and bring from out the ages that have rolled a few small fragments of those wrecks sublime which human eyes may never more behold. Ladies and gentlemen, you must have been given a leaflet which is circulated by myself and the Secretary of the Voters Union. It is a letter written by Abraham Lincoln to the teacher of his child. It is the philosophy on which I think, at least we hope that the child or the coming generation of India should be brought up. I would like to add that to my own views, that a child should be brought up in such a way that he does not think himself to be a Marwari or a Bengali or an Indian or an American or even Russian, but he should think himself to be the citizen of the world. There should be no barriers. I had the opportunity of attending various international youth conventions, and I had met many young people from all over the world, and everybody wants a world without international borders. We accepted this resolution at Halwasia, International Conference of Rofract at New Delhi, and we are working towards this. And I hope that is the right way the world can be saved, friendship can be built up, and human beings can interact more freely with each other. Friends, let me end with a prayer for world peace. This is a very common prayer, a very famous prayer, sung at Missionaries of Charity by Mother Teresa. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there is doubt, true faith in you. Thank you. Jai Hind. हमारे चीफ गेस्ट मोहन जी तुलसियान से अनुरोध करूंगा कि वे दीपक की लौ को प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत का उद्घोष करें। हमारे सम्मानित अतिथि श्री दीपचंद जी नाहटा से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे सोनियर दीप शिखा का विमोचन करें।
हैं श्री मोहन लाल जी तुलसियान। इनके नाम का एब्रिविएशन होता है MLT। किसी ने इनके बारे में ठीक ही कहा है, M stands for most, L for lovable and T for trustworthy। मोस्ट लवेबल एंड ट्रस्टवर्दी। इनके समाज सेवा का मुख्य प्लेटफॉर्म लैंड्स क्लब रहा है। इसके अलावा ये न जाने कितनी ही स्वयंसेवी संस्थाओं, साहित्यिक, सांस्कृतिक और अन्य समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इन सबों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने अनुभवों का निचोड़ देते हुए दो शब्द कहकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। हलवासिया छात्र निवास के अध्यक्ष, बॉर्डर यूनियन के प्रेम अग्रवाल, सेक्रेटरी अजय सुदानी, मेरे परम मित्र और हमारे समाज के लब्ध प्रतिष्ठित हमारे समाज सेवी भाई दीपचंद जी नाहटा, भाई रामकिशन अग्रवाल, गोविंद दास जी झुंझुनवाला, मित्रों, बहनों एवं बंधुओं, आज ये जो हलवासिया छात्र निवास की बॉर्डर्स यूनियन की तृतीय जो उनका वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, इसमें पधार कर मुझे अपार आनंद हुआ है। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में सिया राम मैं सब जुग जाने, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं आपको सबको नमस्कार करता हूं, सुप्रभात कहता हूं। ये एक बहुत ही आनंद का मौका है कि हमारे जो होनहार नवयुवक हैं, जिन पे हमारे देश और सारे विश्व की आशाएं केंद्रित हैं, ऐसे हमारे होनहार नवयुवकों ने आगे बढ़कर इस तरह का एक सांस्कृतिक आयोजन हर साल करने का एक प्रयास किया है। हमें सबको बांधने का प्रयास किया, हमारे मन को जोड़ने का प्रयास किया है। ये बहुत ही उत्तम बात है। हमारे राजस्थान की धरती को हम रत्नगर्भा कहते हैं और रत्नगर्भा हमेशा रत्नों का ही प्रसव करती है। राजस्थान का अपना अलौकिक इतिहास है। भामाशाह जैसे दानशील व्यक्ति जिन्होंने अपने स्वामी के लिए और अपने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष जिन्होंने अथक प्रयास से कभी मुगलों के सामने हार नहीं मानी और यहाँ तक कि घास खाकर लड़ते रहे और अपनी सेना को लड़ाते रहे, अद्भुत मिसाल ऐसी राजस्थान की है। और देखिए राजस्थान का इतिहास तो मीराबाई, जिसके पद आज भी चाहे सुगम संगीत हो या शास्त्रीय संगीत हो बड़े आदत के साथ गाए जाते हैं, भक्ति भाव से भाव विभो कर लोग गाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो राजस्थान का इतिहास एक अनूठा इतिहास है, ये वीरों का इतिहास है। और उसी राजस्थान के इतिहास में एक हस्ताक्षर, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने हम देखते हैं, श्री प्रभुदयाल जी हिम्मत सिंह का, जिन्होंने इस हलवासिया छात्र निवास की स्थापना की 1944 में। और आज ये छात्रावास अपने द्रुत गति से हमारे देश को, हमारे समाज को और सारे विश्व को अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े शिक्षाविद ऐसे होनहार सपूत दे रहा है, जिनके लिए हम सगर्व कर सकते हैं। बंधुओं, आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें हम हमारे नवयुवकों को एक अच्छी शिक्षा देकर उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में समृद्ध बनाएं। और मुझे दुख इस बात का है कि इन शायद 30-40 वर्षों में, जबकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ी है छात्रावास की, क्योंकि हमारा ज्यादातर समाज मध्यवित्त का है और पढ़ने की ललक हमारे बच्चों में बहुत है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो शहर की समस्या है उसमें आए दिन एक सामाजिक व्यक्ति होते हुए हमें ये फोन आते हैं कि साहब हमारे बच्चे को हम छात्रावास में देना चाहते हैं। छात्रावास जो हमारे पास जो भी थे पहले, उसके बाद एक भी नया छात्रावास नहीं बन के आया है। इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम सब मिलकर प्रयास करें कि कुछ और छात्रावास हलवासिया छात्रावास की तरह, खुदार छात्र निवास की तरह, राजेंद्र छात्र निवास की तरह हमारे शहर में आए, ताकि हमारे होनहार युवक
उसमें रहकर शिक्षा पा सकें, अपने आप को समाज के काबिल, देश के काबिल कर सकें। आज जो हमारे देश की समस्याएं हैं वो इसीलिए हैं कि हमारे पास एक उदार चरित्र और एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की कमी है जो अपने हित को सर्वोपरि न मानते हुए सामाजिक हित को, राष्ट्र के हित को सर्वोपरि माने। बंधुओं, नवयुवक हमेशा सचेत रहता है, कार्य करना चाहता है, लेकिन अगर उसको दिशा निर्देश ठीक न मिले तो उसकी सारी क्षमता, उसकी सारी ऊर्जा गलत साबित हो जाती है, काम नहीं आती। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। कहीं एक जगह प्रतियोगिता हो रही थी और दौड़ने वाले को कहा गया कि 15 मिनट में आपको इतनी दूरी तय करके और अपने निर्दिष्ट स्थान पे जाना है। दौड़ने वालों ने बहुत मेहनत की और काफी ऊर्जा खर्च करके वो आगे उस गंतव्य स्थान पे पहुंच भी गए, मगर वहां जाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो वो स्थान नहीं है जिनके लिए उन्हें निर्देश दिया गया था, यानी कि वो वेस्ट में आ गए हैं जबकि कंपटीशन साउथ में था। अब एक छोटी सी मिसाल है, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन चूंकि उनको दिशा निर्देश ठीक नहीं मिला था, उनकी शक्ति क्षय होते हुए भी वो अपने निर्दिष्ट स्थान पे नहीं पहुंच पाए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, आज अगर हमारा नवयुवक दिग्भ्रमित हो गया है, हमारा नवयुवक अगर फ्रस्ट्रेट हो गया है, हमारा नवयुवक अगर अपने आप में कुछ हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा है, उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। हम जो हमारे जो माता पिता हैं, हम जो समाज में आज अपना कुछ स्थान रखते हैं, हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना है कि हम क्या ऐसा प्रयास चलाएं जिससे हमारे नवयुवकों में एक नया जोश, एक नई उमंग, एक नई चेतना हम उनमें भर सकें। इसके साथ साथ चूंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मुझे हमेशा ये कहते हुए खुशी होती है कि हम सबको अपने समय में से कुछ समय निकालकर सामाजिक सेवा की तरफ भी बढ़ना चाहिए। और सामाजिक सेवा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। मैं हमेशा इस बात को मानता रहा हूं कि ऑल मैन आर बॉर्न इक्वल्स। हम सब अपने हिसाब से बराबर में ही रहते हैं। अगर प्रभु ने हम पे कृपा की है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ गए, हम व्यापार के क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ गए, तो उससे हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे हमें प्रभु की तरफ अपने आप को समर्पित करते हुए ये प्रचेष्टा करनी चाहिए कि हमारे पास जो हमारा समय और हमारा मन है वो हमको समाज सेवा में लगाएं। एक छोटी सी मिसाल समाज सेवा की आपको बताता हूं कि अबू हसन बोल के एक व्यक्ति हुआ था और वो हमेशा ही किसी दूसरे की जरूरत पे काम आता था। हमेशा 24 घंटा उसका इसी बात पे बीतता था कि कैसे कोई व्यक्ति मेरे पास सहायता के लिए आए, हम उसकी सहायता करें। और ऐसे माहौल में शायद ही उसके पास समय बचता था कि वो प्रभु का स्मरण करे, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसके भीतर एक लगन थी, एक उसके भीतर ज्वाला थी कि हम अपने बंधुओं के काम आए। एक रात ऐसे हुआ, वो अपने कमरे में सोया हुआ था और एक देवदूत एक बहुत ही लाइट यानी प्रकाश के साथ वहां अवतरित हुआ और उसके हाथ में एक किताब थी। उसको देख के वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, प्रभु आप आए हैं, ये आपके हाथ में कौन सी किताब है, क्या चीज की किताब है? उन्होंने कहा कि इसमें उन व्यक्तियों के नाम हैं जो प्रभु को प्यार करते हैं। कहा, अच्छा इसमें मेरा नाम भी होगा, जरूर देख के बताइए। कि नहीं भाई, इसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है। कहा, ठीक है, मैं तो प्रभु को कभी याद ही नहीं कर पाता, हमेशा सामाजिक कार्यों में लगा रहता हूं, इसलिए शायद मेरा नाम नहीं हो। लेकिन अगर कोई ऐसी किताब आपके पास हो जिसमें उन व्यक्तियों के नाम हो जो प्रभु के बंदों को प्यार करता हो, उनकी सेवा करता हो, तो ऐसी किताब जरूर देख के मुझे बताइएगा कि मेरा नाम उसमें है कि नहीं। देवदूत ने कहा कि ठीक है, मैं चेष्टा करूंगा और फिर अगले बार अगर मुझे किताब मिली तो तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, एक सुनहरे प्रकाश के साथ फिर वो देवदूत आया और उसके हाथ में एक सुनहरी किताब थी। अबू हसन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, देवदूत अब तुम्हें शायद वो किताब मिल गई है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम है जो खुदा के बंदों को प्यार करते हैं। देवदूत ने कहा कि नहीं, ये तो वो किताब नहीं है, ये दूसरी किताब, अन्य किताब है। कि कौन सी किताब है? कि वो किताब है जिसमें उन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं जिनको प्रभु प्यार करता है। अब इस बात को समझिएगा मर्म को। कहा कि अच्छा इसमें कहीं मेरा नाम है क्या? कि अबू इसमें तो तेरा नाम सबसे पहला है।
तो बंधुओं, इससे मैसेज संदेश ये मिलता है कि हम जो अपने व्यक्तियों को, अपने जो जरूरतमंद हमारे भाई हैं, हमारे समाज के अपने लोग हैं, हमारे चाहे नाते रिश्तेदार हों, चाहे हमारे पड़ोसी हों, या हमारे अनन्य मित्र हों, या हमारे अन्य पहचान वाले हों, उनकी हम जो सेवा करते हैं वो एक प्रभु की ही सेवा है। तो आज ये हलवासिया छात्र निवास के जो बॉर्डर्स यूनियन का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है तृतीय, इसमें मुझे इतना ही कहना है कि जिस लगन के साथ प्रेम कुमार ने आज जो बातें कही और उसका जो जोश मैंने देखा, वो वास्तव में हमारे एक नवयुवकों का जोश है। इस जोश को बरकरार रखिए, इसमें और ज्यादा आप में ताकत हो, आप में लगन हो, और आप निर्भीक होकर के आज हमारे समाज को निर्भीक व्यक्तियों की जरूरत है और वो आप ही बन सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग इस सुप्रभात में यहाँ आकर के इनका आपने उत्साह बढ़ाया है, और हमें इन्हें आज के दिन ये विश्वास दिलाते हैं कि भारत का कोई भी नवयुवक किसी भी क्षेत्र में हो, हमारी पूरी संवेदना, हमारा पूरा प्यार और हमारा पूरा आशीर्वाद उनके साथ है और आपके साथ है। पुनश्च यहाँ बुलाने के लिए, आमंत्रण के लिए धन्यवाद। जय हिंद। छात्र निवास के सभी बोर्डर से मैं अनुरोध करूंगा कि वे प्रार्थना के लिए मंच पर आ जाएं। Deep Shikha, or a very humble flame. Our hope is that this humble flame of honesty and effort, which is lit by 32, or rather relit by 32 borders of Halwasia Chatra Niwas, one day will take the form of a roaring fire and will attack corruption in every strata of Indian society and will lead to a spontaneous but silent revolution of minds, and the country will be free from all corruptions. Thank you. We start our prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी ले भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमने सोचे हमें क्या मिला है, हमने सोचे किया क्या है अरबन। पूरे खुशियों के बाटे
सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन हो। अपनी करुणा परस्तु के सरल पावन हरित मन भगोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। हमारे चीफ गेस्ट श्री मोहनलाल जी तुलश्याम, हमारे मुख्य वक्ता श्री रामकिशन जी अग्रवाल, श्री गोविंद राम जी झुंझुनवाला, सितारों की तरह चमकते हुए हमारे बंधु और बहनों, मुझे आज आपके बीच उपस्थित होकर बेहद खुशी हो रही है। आपके सभापति महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले वर्ल्ड पीस के लिए प्रार्थना की। अभी फिर कितनी शक्ति हमें दो विधाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी अच्छी प्रार्थना हम लोगों ने फिर सुनी। आपका सविनय मैं अभी भी देख रहा था, इसमें आप जो एक्टिविटीज करते हैं वे सब हमें आगे बढ़ाने के लिए है। वे सभी मनुष्य को पूर्ण मनुष्य बनाने के निमित्त हैं। ये सब देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। होता छात्र निवास और हलवासिया छात्र निवास वर्कर्स यूनियन ये एक ही समय श्रीमान प्रभुदयाल जी कुंवर सिंह का के हाथों स्थापित हुए थे। दादाजी की आपने जितनी प्रशंसा की, जितनी की जाए वह बहुत कम है। उन्होंने छात्र निवास ही नहीं, हमारे सामाजिक जीवन में अत्यधिक सहयोग दिया है। हमें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अत्यधिक प्रयत्न किए हैं। आज समय वे निर्वाण प्राप्त हो रहे थे, उस समय अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, हे आनंद, रो मत, यह रोने का अवसर नहीं है। तुम अपने लिए दीपक बनो। निर्वाण नितांत स्वाभाविक है, उसके लिए तो हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। आपको याद है युधिष्ठिर और यक्ष की बात। युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि दुनिया में सबसे आश्चर्य की क्या बात है। युधिष्ठिर ने बताया कि आश्चर्य की बात यही है कि मनुष्य यह जानता तो है कि सबको मरना है, लेकिन वह अपने लिए नहीं सोचता। हमें निडर होना इसलिए आवश्यक है कि हम सामाजिक जीवन हो चाहे राष्ट्रीय जीवन में हम हिस्सा ले रहे हों, कहीं भी, तो बार बार हम अस्वाभाविक स्थितियों का सामना करते हैं और वहां झुक जाते हैं अपने स्वार्थों के लिए। उससे देश, समाज और स्वयं की अत्यधिक क्षति होती है। मनुष्य यदि यह सोच ले कि हमें ठीक ही काम करना है, तो फिर उसको न तो भय रहता है और वह ठीक रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। अतः हमें जहाँ निडर होने की मैंने बात कही, वहीं मैंने एक बात और कही कि अब हमें कर्तव्य परायण होना ये अत्यंत आवश्यक है। हमारा जो कर्तव्य है उस पर हमें निष्ठा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। भगवान कृष्ण ने
कर्मण्य अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन का जो वाक्य गीता में कहा है, वह दुनिया के इतिहास में, दुनिया की सारी पुस्तकों में कोई भी एक तरफ हम रखते हैं और उस वाक्य को एक तरफ रखते हैं तो उनके बराबर है। हम यदि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करते हैं, ठीक है वही करते हैं, और उसके फल को यदि भगवान के अर्पित कर देते हैं, तो उससे अधिक महान कार्य और कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस समय जब हम कार्य करते हैं, हमें मालूम है कि हम ठीक काम कर रहे हैं, कर्तव्य है वही कर रहे हैं, तो फल है वो तो भगवान के अधीन है। हम सोचते हैं वो कितनी बार होता है, अनेकों बार हम देखते हैं कि ठीक काम कर रहे हैं, फिर भी उसके रिजल्ट दूसरी तरह से होते हैं। लेकिन यदि हम ठीक काम पर अडिग होकर चलते रहें, ठीक रास्ते पर चलते रहें, तो आखिर हम देखेंगे कि ठीक काम ही विजयी होगा। सत्य को तो विजयी होना ही है। राइट इज माइट, ये ऑलवेज सत्य है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। मुझे इस समय पिछली बार मैंने हौलदार छात्र निवास की ही जो सवेनियर है उसी में एक कहानी पढ़ी थी तो याद आती है। चीन में एक तांग नाम का व्यक्ति था और भेड़े चराने का उसका काम था। उसने दो लड़कों को रखा उनको चराने के लिए, और कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वे भेड़ें कमजोर हो गई है। उसने उनकी जांच कराई, क्या कारण है कि वे भेड़ें कमजोर हुई, तो ये पाया गया कि एक व्यक्ति तो जुआ खेलता था और जब वह जुए पर दाव लगाता था, भेड़ों की निगाह नहीं रखता था, भेड़ें कमजोर हो गई। और दूसरा पूजा पाठ करता था और जब वो पूजा पाठ करता था उस पर भेड़ों की निगाह नहीं रखता था, भेड़ें कमजोर हो गई। उनको न्यायाधीश के पास ले जाया गया। न्यायाधीश ने दोनों को दंड दिया, कहा कि कर्तव्य को जो व्यक्ति भूलाता है वह ठीक नहीं है, और दोनों को एक ही दंड दिया, एक ही प्रकार का दंड दिया। तो इससे यह पता लगता है कि जो अपना कर्तव्य है, यदि आप कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसको पूरी तरह से ठीक तरह से निभाइए। अभी मैं मोहनलाल जी तुलसियान से बात कर रहा था तो यही बात हम लोग कर रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को ठीक तरह से देखे भी नहीं तो उसका वह कोई काम के योग्य नहीं है। न उसे समाज में कोई काम दिया जा सकता है, न वह राजनीतिक जीवन में कोई काम ठीक से उठा सकता है। आज हमारे भारतवर्ष में जो राजनीतिक अवस्था है वो केवल इसलिए डिटीरिएट हो रही है कि सब अपने पर्सनल स्वार्थ में लगे हुए हैं। देश के लिए क्या करना है वह भूल गए हैं। कैनेडी ने एक बार कहा था, डोंट थिंक व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। यदि हम देश के लिए सोचते हैं तो देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कर्तव्य को न भूलें और आप निरत होकर कर्तव्य की तरफ अग्रसर होते जाएं। धन्यवाद। प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेम अग्रवाल, चीफ गेस्ट श्री तुलसियान जी, to be with you all this morning on the happy occasion of the annual function of Halwasia Chatra Niwas Border Union. I am particularly happy because of two reasons. First of all, it happens to be the annual function of an institution like Halwasia Chatra Niwas, which has been working for the benefit of students in the city of Calcutta for the last 44 years. And also because whenever I am in the company of my young student friends, I also start feeling young. It's not that I am very old, but still, man always wants to feel younger and younger, and that's why I never miss an opportunity to be in the company of my young student friends. Friends, you have heard from the President that this institution was founded way back in the year 1944 by the most renowned social worker and philanthropist Sri P.D. Himmasinka, who has been and still remains the constant source of inspiration for the management and inmates of not only Halwasia Chatra Niwas
but of many other social and charitable institutions which are existing in the city of Calcutta today. Besides that, this institution has also had the good fortune of having the blessings of philanthropists like Sri B.P. Ketan, late Sri M.P. Birla, Sri Ramkishore Jalan, Sri Jinjumala and many others who not only contributed generously for its running and maintenance, but also put their heart and soul into it to ensure that the students get the right type of education and they come out successfully in their life. Friends, this institution has been serving the students coming from various parts of our country for the last 47 years. And while I was looking through the souvenir which has just now been released, it was a pleasant surprise that there are students from most of the states in our country, right from UP, Bihar, Orissa, Assam, Rajasthan, and this is the real symbolism or symbolic of national integration which we all have been talking about. If the borders from different parts of the country can stay together like friends, like brothers, why we all can't live together peacefully and help each other to see that our country progresses and grows faster and faster. This is a real good example of national integration and we must try to follow it in our life as well. Now friends, although I have been designated as the principal speaker, but I won't like to take much of your time because I know you have all come not to listen to my speeches, but to enjoy the beautiful program which has been organized for you. But since the master of ceremony has asked me to speak something about for the benefit of the students, I'll just take 2 minutes. Student life, as we all know, is the most important as well as the most enjoyable life a human person. It is during this period that one can make or mar his future. Student life is like a china clay. जैसे कच्ची मिट्टी को हम कोई भी रूप दे सकते हैं, उसी प्रकार इस जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में हम अपने जीवन को जिस सांचे में ढालना चाहें उसी सांचे में हम ढाल सकते हैं। एक कच्ची मिट्टी से एक कुम्हार भगवान राम की मूर्ति भी बना सकता है और वहीं पर कंस या रावण की भी मूर्ति बना सकता है। तो यही एक ऐसा समय है दोस्तों जिसमें हम अपने आप में ऐसे गुण ला सकते हैं जो आगे आकर जीवन में हमें आगे बढ़ाएं। हमें याद रखना चाहिए अपने जीवन के लिए अर्जुन का एग्जाम्पल। जब अर्जुन धनुर्विद्या सीख रहा था तो आप लोगों को याद होगी कहानी कि गुरु ने उससे पूछा, पेड़ पे बैठे हुए चिड़िया को देखकर जब और लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे आकाश दिखाई दे रहा है। किंतु जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा कि गुरुजी ने सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई रहना चाहते हैं तो हमें भी लोगों में खुशियां ये बांटनी पड़ेगी। किसी ने कहा भी है कि जिंदगी में दोनों है फूल और कांटे, जिंदगी में दोनों है फूल और कांटे, आप खुद जो चाहें वो दूसरों में बांटे। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो दोस्तों हमें खुशियां आपस में बांटनी पड़ेगी। और एक बात दोस्तों जो ये है कि अगर इंसान होकर हर इंसान अगर अपने आप को अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से रख सके तो ये दुनिया की जितनी समस्याएं हैं सब सुधर जाएंगी। मुझे एक घटना याद आती है, रात के 11 साढ़े 11 बजे होंगे, मैं अपने ऑफिस की एक रिपोर्ट लेकर लाया था और उस रिपोर्ट को देख रहा था। मेरी छोटी बच्ची है जो आई बैठकर
मुझसे गपशप करने लगी और उस समय मुझे चूंकि वो रिपोर्ट करनी थी तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया, वो नहीं मानी। तो मैंने सोचा क्या उपाय किया जाए, तो मेरे पास एक वर्ल्ड मैप, एक कागज पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके कई टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े उसे दे दिए और कहे कि बेटी तुम इसको फिर से इस वर्ल्ड मैप को जोड़ दो तो मैं तुम्हें कल एक बढ़िया सी बड़ी सी कैडबरी चॉकलेट दूंगा। तो बोले ठीक है पापा, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने सोचा इसका तो आधा 1 घंटा गया और मैं इतने देर में अपनी रिपोर्ट कर लूंगा। किंतु मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ जब सिर्फ 3-4-5 मिनटों के बाद ही उसने वर्ल्ड मैप को ठीक करके लगा दिया और कहा पापा ये देखिए वर्ल्ड मैप बन गया। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये 7 साल की लड़की है, इसको तो भूगोल की कोई जानकारी नहीं है, वर्ल्ड मैप कैसे लगा दी। तो मैंने उससे पूछा ऐसा कैसे हुआ, तुमने ऐसे कैसे इतनी जल्दी बना लिया। तो उसने कहा वो वर्ल्ड मैप के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, इसके पीछे एक इंसान का चित्र बना हुआ, आदमी का एक चित्र बना हुआ था और मैंने उस चित्र को देख देख कर मिलाकर और ये वर्ल्ड मैप बना लिया। तो इसमें कितना गहन एक संदेश है कि अगर इंसान ठीक रहे, अगर इंसान अपने आप को व्यवस्थित रूप से रख सके तो वो सारा जो वर्ल्ड मैप जो ठीक किया, ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं है, वास्तव में ये सारा विश्व एक जो वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हम किया करते हैं उसी के प्रारूप में ढल जाएगा। अब मैं आप लोगों का विशेष समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं हरवासिया क्षेत्र निवास बोर्डर्स यूनियन के सभापति और अन्य सदस्यों को धन्यवाद देता हूं मुझे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और यही विश्वास और आशा रखता हूं कि आने वाले समय में ये उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद। कहते हैं कि और जो एक सामाजिक संस्थाएं हैं, उदार छात्र निवास और हरवासिया छात्र निवास, इन लोगों का बहुत ज्यादा श्रेय है। पिछले 50 वर्ष में इन्होंने बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन सब पैदा किए हैं जो कि आज देश में हिंदुस्तान के नक्शे में चारों तरफ 500-400 सर्जन, डॉक्टर और सब फैले हुए हैं। और आप कहीं भी जाइए चारों तरफ संसार में पूरी सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सबको बधाई है कि आज ऐसे फंक्शन में आप शामिल हुए हैं जिसमें बड़ी बड़ी विभूतियां, बड़े बड़े महान लोग शामिल हैं। Now, as the Secretary of the Buddhist Union, I would like to read out my report. Who are here and thus have contributed in successful staging of this get-together, and also those who are not here but have encouraged us in any form whatsoever. In fact, we had been encouraged by each and every person we came across once the idea of staging this program germinated in our mind. I would like to utilize this opportunity to give you a brief account of our activities during last year. We have been sent by our parents for studying here, and so the prime motive for us here remains producing good academic results. We have been successful in improving our performance in the last few years significantly. I feel proud reporting that we have produced some All India rank holders. One of our boarders got 38th rank in CA Inter, one 5th rank in ICWA Inter, and one 29th rank in ICWA Final. One of our boarders was selected for computer engineering. We appreciate that there remains a lot to be done, and we assure you that next year we'll be with you with still higher ranks. But performance in academic fields is not our only motive. In fact, we are here in the making of a perfect citizen with all-round development and who can soldier the responsibilities of the country in future. As regards other activities, we organize annual sports competitions in our hostel, which not only sharpens our performance in sports and helps in health keeping, but also creates a healthy competitive feeling in us. Some of our boarders also go to Vyayam Shala for exercises. We are shortly purchasing exercising equipments for our hostel. We also celebrated Saraswati Puja with usual delight. The special thing about our puja is that the whole decoration is being done by the inmates of the hostel. It not only propels us for teamwork, but also adds to our imaginations. We also had an excursion to Puri to add to our knowledge of place and people. We really enjoyed it. Committee members, our trustees,
all boarders, patrons, advertisers and tax boarders, and rest all of you who have spared their invaluable time to encourage us at this venue today. Jai Hind. Thank you. Each one of you who have encouraged us so lot. In the words of Shakespeare, I am taking the help of Shakespeare to express my gratitude. In Macbeth, Shakespeare says, "More is thy due, much more is thy due than more than anything can pay in this world." Thank you. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब.